कैसे हो दोस्तों। आज अपन लोग चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टाइम में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो जे डबल नीट का पेपर था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस थे। 20 के 20 क्वेश्चंस इधर सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस दमखम वाले, आइडियल फॉर नीट जे डबल, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड सेट। तो ये 20 क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, कहाँ पे आपने गलती की थी, आपका लॉजिक और इधर लॉजिक में क्या डिफरेंस है वो चेक करो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया है और वो एनालाइज करना चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर ये पेपर अवेलेबल है www.physicsbygopalsir.com। ये जिसे कह सकते हैं वेबसाइट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आप एक क्वेश्चन पेपर को साथ में रख के भी रेफरेंस ले सकते हो। So friends, without wasting time, very important paper. So just think about the question number 1. In question number 1, the current passing through conductor is given 2t plus 3t square. So what is the charge passing through this conductor in 2 second to 3 second? In between 2 second to 3 second, you have to find amount of charge passing through given wire. So we know that very well. We'll start with this point. Charge का formula I dt. You know that. Current is given and you would like to find charge, then integration, it is t1 to t2. Here t1 2 to 3, current already 2t plus 3t square dt. So we'll start the integration. 2 out of first term, you can see 2 constants out of integration. What is the integration of t? It is t square by 2. Don't forget limit plus. Now second term, what is the constant? 3t square, 3 constant. So now t square, what is the integration of t square? It is t cube by 3. Don't forget limit. After integration, little bit mathematical simplification of t square. तो इधर t की जगह पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, सो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस here t cube, so 3 cube minus 2 cube, upper limit minus lower limit. So 3 cube minus 2 square, 3 square 9 minus 2 square 4, 4 minus 9 minus 4 that means 5, and 27 minus 8 that means 19. So 24 coulomb charge will pass through this conductor in this period, that means 2 second to 3 second. So question number 1, you can see here answer 24 coulomb. Now second question. In second question, in a hydrogen atom, electron revolves with a velocity of 2.1 into 10 raised to 6 meter per second in a radius of 5.3 into 10 raised minus 11. So what is the current? तो मैंने बताया any time, suppose this is the nucleus, electron revolves around the nucleus in its circular orbit of radius r with velocity v, then what is the current? Its shortcut already I have given, EV upon 2 pi r. Using this shortcut we can find current, and if you set up the values, then you will get answer. Question number 2a, that means here answer is 1 milliampere you will get approximately. So this is the shortcut, don't forget, and we have discussed it. So question number 2. Now question number 3. So पहले राउंड में जो 20 क्वेश्चन है उसमें मोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस तक के कंसेप्ट हमने क्लियर किए। दूसरे पेपर में अपन लोग पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, केएसएल वो देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 10 mm of an ordinary copper wire is about 10 raised to 21. देखो ऐसा 10 mm per 10 mm, how many number? It is given 2 into 10 raised to 21. Area of cross section here A. The average drift speed, drift velocity Vd is given. Then current flowing is blank. What is the current passing through it? So we know that very well. This is question number 3. So current का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, current I is equal to वीणा, बजाओ वीणा, या ना that Vd E Na, या फिर अपन लोग दूसरी तरीके से Na Vd E जो भी लिखना हो। अब अपने पास करंट का टारगेट है n. what do you mean by small n? It gives idea about the number density, that means the number of electrons. First of all we start n, the number of electrons or charged particles
per unit volume. So N is equal to here a capital N, this is capital N, sorry. So number upon volume. So number N, what is the volume? Area into length. So already we can write now VD E, instead of N now I can put, instead of N I can put N into A into L upon capital A. This is your number density of charge carriers. So alvida dosto, A cancel, VD already given, you can see that. So VD with us, charge of electron, you know that. Now capital N already with you, you can see, upon L already with you 10 mm, but you have to convert this 10 mm into meter because all terms in, we can say the MKS, set up the value, and if you simplify then you will get answer. Question number 3, very interesting. Question number 3, answer B, that means 8 ampere. So this is the logic, you can see here. Area is not given because if you use this type of concept, so area automatically get cancelled, you can see. So this is the most timely formula for this type of question. Analyze. Question number 3. Now question number 4. वापस मैं बोल रहा हूँ, पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है. काफी स्टूडेंट टेस्ट दे देते मगर उसका सॉल्यूशन नहीं, ये दे दिया, कितने मार्क्स आए इतने, बाद में भूल जाओ. डोंट कंसीडर मार्क्स, think about the, we can say, the logic behind each and every question. So question number, you can see that 4. Now the masses of 3 wires of copper are in the ratio. The ratio of mass is given, M1 is to M2 is to M3 is equal to 1 is to 2 is to 3. And the length ratio, L1 is to L2 is to L3 is equal to 3 is to 2 is to 1. Then find the ratio of their resistance. Shortcut हम जानते ही है, R is directly proportional to L square M. So here R1 is to R2 is to R3 is equal to L1 square by M1 is to L2 square by M2 is to L3 square by M3. So L1, L2, L3. So 9 by 1 is to L2 2. So 4 by 2, you can see that 4 by 2 is to L3 1. So 1 upon 3 and 3. So here 9 and 6, you can see that answer बनेगा इधर 2 to, sorry there is mistake, 9 is to 2 is to 1 is to 3. So 27 is to 6 is to 1. This is your answer. ये तो लोग 9 3 जा 27, 6 और 1, तो ये आंसर बनेगा 27 is to 6 into 7, that means sorry 27 is to 6 is to 1. Answer D. So question number 4D very easy, मगर काफी लोग इसको इजी लेके छोड़ देते, मगर ये बहुत ही फेमस है, पूछेंगे. Now question number 5, a uniform wire of resistance R is compressed and until its radius becomes n times, then what's the resistance? तो अपन लोग तो जानते हैं लेंथ अगर n टाइम्स हो तो रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स, अगर एरिया हो तो 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स, अगर रेडियस हो तो 1 अपॉन n रेज टू 4 टाइम्स. याद आया कि नहीं? ये सभी कंसेप्ट दिए हुए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आएगा ए, 1 अपॉन n रेज टू 4 टाइम्स. तो ये सब कंसेप्ट याद रखने का है फ्रेंड्स. एरिया, रेजिस्टेंस, दिस ऑल आर वेरी वेरी IMP. Now question number 6, at what temperature will the resistance of copper wire be 3 times its value at 0 degree Celsius? तो अपन लोग तो जानते हैं कौन से टेम्परेचर पे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है उससे 3 गुना हो. सो लेट रेजिस्टेंस एट 0 degree Celsius temperature, it is R0. You know that this R0 is called simply the resistance at reference temperature. So as per given temperature, sorry, condition, let at temperature T, resistance of wire is RT, and here resistance at temperature T is 3 times of resistance at reference temperature. ऐसी कंडीशन दी है. इक्वेशन हम फेंकते हैं जो अपन लोग जानते हैं, 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. याद आया? रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, अल्फा coefficient resistivity of temperature, you know that coefficient of resistivity at
resistivity or temperature coefficient of resistivity, very IMP, temperature coefficient of resistivity. तो चलो RT दिया है 3R0, R0 1 plus alpha T. Here reference temperature already 0, so R0 cancel, so 1 plus alpha T, so 2 alpha T, so T is equal to 2 by alpha. Alpha value already given, value of alpha 4 into 10 raised to minus 3. You can see 4 into 10 raised to minus 3. So अपन लोग देखें, so 1000 divided by 2 यानी कि 500 degree Celsius. So obviously at 500 degree Celsius temperature, resistance of this copper wire becomes 3 times that of, you can see that resistance at reference temperature. तो ये भी एप्लीकेशन हमने पेपर का सिलेक्शन इस तरह किया था कि हर एक एप्लीकेशन आपका दिमाग में आ जाए. सो इसलिए सब पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. देयर इज अ कार्बन रेजिस्टर इज गिवन, यू कैन सी. यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर. कार्बन रेजिस्टर आए और रेजिस्टेंस पूछे, दिमाग में एक ज बंदा याद आना चाहिए, बीबी रॉय. कहाँ गया? ग्रेट ब्रिटेन. क्या मिली? वेरी गुड वाइफ. वाइफ भी कैसी? वाइट वाइट. शादी हो गई, उसके बाद जीवन में सोना चांदी गोल्ड सिल्वर, मगर थोड़े दिनों के बाद कोई कलर नहीं रहता शादी के बाद. तो अपन लोग इसकी कहानी में देखें तो उसके मुताबिक बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ एंड गोल्ड सिल्वर नो कलर. याद आया? गोल्ड 5% टॉलरेंट, सिल्वर 10%, नो कलर 20%. चलो इधर पहला कलर दिया, पेपर देखो रेड, तो 0 1 2, तो पहला डिजिट बनेगा 2. फिर है येलो, तो 0 1 2 3 4, येलो यानी 4 यानी 24. पहले दो बैंड्स बनाते हैं डिजिट, थर्ड को कहते हैं मल्टीप्लायर जो वायलेट है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 10 raised to 7 प्लस और माइनस लास्ट बैंड है सिल्वर, सो 10% रेजिस्टेंस यानी ओम, यानी आंसर आएगा ए. यू कैन सी वेरी इजी. So this is your question number 7. Now we will discuss question number 8. So this is very IMP. Just check it. So now question number 8. For driving a current of 2 ampere for 6 minutes in a circuit 1080 work is done, then EMF of the source in the circuit is blank. थोड़ा interesting. कोई सर्किट में 2 एम्पियर करंट 6 मिनट तक फ्लो करवाना हो तो कितना वोल्टेज होता है? 1080 जूल. तो इस सर्किट का जो बैटरी, उसका ईएमएफ क्या होता है? तो याद करो ईएमएफ का थियरी. व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मिसनोमर वर्ड. इट मिसगाइड्स यू. इट इज नॉट फोर्स. बट व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? ईएमएफ दैट मीन्स सिंपली the work done per unit charge, or work done required in moving charge from negative pole of the battery towards the positive pole of the battery. That means simply EMF of battery, that means work done per unit charge, simply potential. So W already with us, Q is not given, but don't worry, current and time given. So Q is equal to IT. So 1080, current already 2 ampere. Be alert, T already in minute. So 6 into 60 because of minute to second. Simplify, you will get answer 6 3 108 होता है. You can see that. So answer आएगा approximately, I can say, if you think about option. So question number 8A, that means 1.5 volt. ये 0 0 cancel. अपन लोग चेक करें तो इधर 108 2 36 36 3 जा 108 3 by 2 1.5. So 1.5 volt. This is the answer of question number 8. ये अच्छा क्वेश्चन है EMF रिलेटेड. तो जरा देखो. Now question number 9. Question number 9. A voltmeter of 998 ohm resistance is connected to a cell of EMF 2 volt. This is the cell. What is the EMF of the cell? 2 volt. And there is a voltmeter is connected having resistance 998 ohm. Okay, next, internal resistance already given. Here internal resistance already given 2 ohm. So what's the error in measuring EMF?
तो पहले तो अपन लोग जानते हैं, देखो ये मोस्ट टाइम पॉइंट, हम लोग पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन कर रहे थे, याद करो पोटेंशियोमीटर, क्यों पोटेंशियोमीटर की कुछ अलग ही वैल्यू है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर ईएमएफ बैटरी का मेजर करता है। तो क्यों ये वोल्ट मीटर हमने डिस्कस किया था, सिंपल वोल्ट मीटर और टेबल वोल्ट मीटर डजंट मेजर ईएमएफ। क्यों देखो, अभी मैंने इस बैटरी के साथ ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस 998 ओम है। तो ये वोल्ट मीटर इस बैटरी का कभी भी ईएमएफ नहीं देगा, ये वोल्ट मीटर बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज देता है। तो ये वोल्ट मीटर अगर बैटरी का ईएमएफ मेजर करे तो कितनी एरर आएगी, तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए तो हमें पोटेंशियोमीटर ही याद रखना है। तो ये आइडियल एग्जांपल, इसके थ्रू आप पोटेंशियोमीटर का भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें से अपन लोग करंट फ्लो करवाए, क्योंकि ये वोल्ट मीटर एग्जैक्टली कितना वोल्टेज मेजर करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस across voltmeter, और आई कैन से रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा, वोल्टमीटर V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मिल जाए, रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन। सो करंट I इज इक्वल टू सिंपली यू नो दैट एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, याद करो। सो एप्सिलॉन 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 998 into resistance 2, so it is, you can see that resistance what to be, मैं इसको solution कर दो, 998 plus 2 यानी 0.02 आएगा। so you can see here simply 2 upon 1000 यानी 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर करंट प्लस होगा। तो इसका वोल्टेज मेजरमेंट करें तो I है 2 into 10⁻³ और रेजिस्टेंस है 998, सो 998 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अपन लोग कैलसी थ्रू देखे 999, ओके जरा देखो 998 मल्टीप्लाई बाय 2 इट गिव्स 1996, 1.996 बिकॉज ऑफ -3 एंड दिस इज आंसर। इतना वोल्टेज मेजर करेगा। अगर आप देखते हो ये वोल्टेज है वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर 1.996 मेजर करता है, जबकि ईएमएफ है 2 वोल्ट। सो व्हाट इज द एरर इन रीडिंग, सो एरर इन रीडिंग it is 2 minus 1.996, whatever the answer it is 0.004, यानी कि अपन लोग चेक करें आंसर, सो इट इज 4 into 10⁻³ वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बनेगा सी। सो दिस इज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9C। 9C यू कैन सी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, काफी लोग 9C में जरा ध्यान रखे, 9C में से नैनसी ना हो जाए, डोंट फॉरगेट 9 के साथ C का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। सो मोस्ट टाइम भी तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। और देखो वोल्ट मीटर से हमने ईएमएफ मेजर करने की कोशिश की, तो वोल्ट मीटर ने इतना आंसर दिया, यानी वोल्ट मीटर कभी भी एक्यूरेट वैल्यू ईएमएफ का नहीं देता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में थोड़ा तो करंट पास होता ही है, इसीलिए हमें जाना पड़ता है भाई श्री पोटेंशियोमीटर के पास। सो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। सो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, जिसके कंसेप्ट क्लियर ना हो कर ले अच्छी तरह और वापस ये देखे। अब यहाँ से अपन लोग देखते हैं सर्किट शुरू हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इधर आपको रजिस्टर इस तरह दिया है, देखो और इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इस तरह का सर्किट दिया है, टोटल 11 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। तो अपन लोग के पास अब सिमेट्री है, सिमेट्री के लिए हमने एक लेक्चर लिया, चेक किया हो, तो जिसको ना पता चले वो सिमेट्री टेक्निक वाला पार्ट देख ले। अब सिमेट्री टेक्निक के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको अगर परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाए तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो। सो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा, चलो परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। सो इफ यू अप्लाई परपेंडिकुलर xy you can see, then you know that very well perpendicular axis of symmetry, then you have to check the points, whatever the points are available or points lying on this xy line, that means perpendicular axis of symmetry। वापस देखो perpendicular axis of symmetry का concept, अगर आपने perpendicular axis ड्रॉ की है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पोटेंशियल सेम होंगे, बिकॉज ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम।
So potential same. So potential difference across these 2 points, suppose this is S. What is the potential difference between X and S? Same, यानी 0. यानी ये गया, फिर ये भी गया, तो बचेगा कितना? इसको हटा दो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। तो ये दोनों किस तरह होंगे? सीरीज है, तो 2 2, तो ये बन गया 4। इसी तरह 2 2, तो ये बन गया 4। अब आया ए बी, तो ए से बी वो है 2, ये रहा 2। अब वापस 2 2, तो ये भी 4, और वापस 2 2, तो ये भी 4। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह कनेक्शन हुआ। अब तो इसको सोल्व करना बहुत इजी, पहले इसको निपटो। 4 4 पैरेलल, तो इट बिकम सिंपली 2। 4 4 पैरेलल, इट बिकम सिंपली 2। और लास्ट जिसे कह सकते 2। सो ये तीनों तीन पैरेलल, सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 नेट रेजिस्टेंस ए बी। गुलाटी मारो तो ये हो जाएगा 3/2, तो आंसर होगा गुलाटी के बाद 2/3। इसको आप घर पे अपने आप पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी अप्लाई करो, सिंपली विस्टन ब्रिज भी अप्लाई करो। ये पहला विस्टन ब्रिज, नीचे विस्टन ब्रिज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर 2/3 होगा। मगर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो बहुत ही इजी, सब कुछ कंसेप्चुअली अप्लाई करो तो इजी है, डोंट वरी। सो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर 2/3। नाउ 11, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये पैटर्न आपको मैंने कितनी बार बोला है, 1 2 3। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन always leads towards the parallel combination। तो ये रेजिस्टर R 2R और तीसरा भी जिसे कह सकते हैं कि 2R ही है, ये तीनों तीन किस तरह कनेक्टेड है? पैरेलल। So what is the net resistance for parallel? 1/R plus 1/2R plus 1/2R। So इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 2 + 1 + 1 यानी 4/2R, यानी 2R/4 गुलाटी के बाद यानी कि R/2। तो आंसर आ रहा है R/2C, 11C you can see। So this is question number 11, very easy। Now we'll move towards the next point। Next point, question number 12। So what is the question number 12? 12 number interesting। ये क्वेश्चन काफी लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। दिस इज हाईली वी कैन से दैट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसा हमने सोल्व किया हुआ है। अब इसको देख के काफी लोगों के दिमाग में लेडर नेटवर्क आ जाएगा। काफी लोग तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क, देन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू R 1 + √3। मगर ये ऐसा लेडर नेटवर्क इनफाइनाइट नहीं है। ये P और Q देखो इधर, दिस P एंड Q शॉर्ट सर्किटेड, इनपुट और आउटपुट सेम हो जाता है। ये इनपुट और यहाँ से वापस आउटपुट, तो ये पूरा पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड, तो बचेगा कितना? सिर्फ X to Y। So these two resistors are simply connected in parallel or series। So it is R plus R, that means 2R। Very interesting। तो ये पूरा पोर्शन हट गया, आंसर आएगा 2R। तो क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह कंसंट्रेशन के साथ एनालाइज करो। क्वेश्चन नंबर 12 2R। 13 इंटरेस्टिंग, इजी, मगर 5 का पंच लेके लोग सिंपल विस्टन ब्रिज अप्लाई करने की कोशिश करें। देखो ये मैंने मेथड सीखा, शिफ्टिंग ऑफ वायर, तो अपन लोग ये देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट। दिस आर द 2 रेजिस्टेंस 2 ohm 2 ohm, then there is one more resistance 2 ohm, then 2 ohm and again 2 ohm। this type of structure is given, you can see 2 ohm। तो ऐसे क्वेश्चन में डरने का नहीं। मैंने बोला शिफ्टिंग, ये वायर को इधर से डिसऑर्डर कर दो, यानी कि इसको कट कर दो और यूं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो आपका क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। ये वायर दोनों एक ही पॉइंट है, देखो ये पॉइंट पहले इधर था तो इधर कर दिया, ये पॉइंट इधर, तो कुछ दिख रहा है? यस। ये दोनों किस तरह कनेक्टेड? ये बोथ आर इन पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो इसका हो जाएगा 1, इसका भी 1, फिर ये दोनों सीरीज, तो 1 1 2 और ये 2 और 2 वापस पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा 1। वापस देखो, ये शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये दोनों रजिस्टर इस तरह कनेक्टेड, तो ये 2 2 पैरेलल, तो इसका 1 ओम होगा हाफ, ये 2 2 तो 1 1, ये 1 1 सीरीज में, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 ओम, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल, आंसर आएगा 1/2, यानी
2 2 का हाफ करके 1 is 1 हाफ नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर आएगा A1। अब आता है 14 नंबर। 14 नंबर में जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा डेटा इनकम्प्लीट है, इसलिए इसके मार्क्स आपको मिलेंगे क्योंकि डायग्राम देना पड़े। तो बाय मिस्टेक डायग्राम इज नॉट वी कैन से दे प्रिंटेड, बट डोंट वरी। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, देखो देयर इज अ 3 ओम, देयर इज अ 6 ओम एंड देयर इज अ 4 ओम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करंट पासिंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। इसका पीडी फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो मैंने आपको सिखाया पीडी अक्रॉस एनी रजिस्टर, दैट मींस करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो 4 ओम के अक्रॉस पीडी फाइंड करना हो तो 4 ओम में से कितना करंट पास हो रहा है, सपोज आई, और उसका रेजिस्टेंस 4 आई मिल जाए, बात खत्म। तो देखो ये लोगों ने बहुत ही इंटेलिजेंस यूज किया है। इधर इसको आप I1 कह दो, इसको R1 कह दो, R2। फिर मैंने आपको इसका मेथड सिखाया है, I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2, याद करो ऐसे शॉर्टकट। तो इसको I1 यूज करके कर सकते हो और I फाइंड कर सकते हो। मगर इससे भी थोड़ा दिमाग लड़ाते हैं। इधर रेजिस्टेंस है 3 ओम, सो इधर रेजिस्टेंस डबल, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो करंट हाफ हो जाए, बिकॉज दे आर इन रेसिप्रोकल। तो इसमें से 0.8 एम्पियर करंट पास होता हो तो बट नेचुरल अपन लोग कह सकते हैं कि 6 ओम में डबल रेजिस्टेंस होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। तो 0.8 का करंट हाफ यानी 0.4, तो ये 0.8 और 0.4 का संगम हो तो 1.2 हो जाए। तो अब इस 4 ओम में से करंट कितना होता है, 1.2, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 इट गिव्स 4.8 वोल्ट। तो इंटेलिजेंट, ऐसा दिमाग ना चले तो ये तो फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई इट, डोंट वरी। अगर it was sort incomplete, we can say the data incomplete in terms of diagram, so just concentration required. Now question number 15, the equivalent resistance between the terminal point of P and Q। देखो P इस तरह है, there is, we can say that 3 resistor, then there is one more resistor and there is one more resistance, R Q। The net resistance across PQ is 4 ohm. The net resistance across PQ is 4 ohm. Then what's the value of R? तो पहले ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग जानते हैं नेट रेजिस्टेंस ही फाइंड करो P और Q के बीच में। So these 3 resistors are connected in which way? They are in parallel, R. So R in parallel. So 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. So 3 by R. गुलाटी पैरेलल गुलाटी, तो इतना झमेला है, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R by 3। अब इस R by 3 के साथ ये R सीरीज में होगा, ऐसा यू कैन सी। मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करूं, P, ये हमने झमेले का सोल्व किया R by 3 और R और ए Q और ए रेजिस्टर R। अब ये दोनों किस तरह कनेक्टेड, दे बोथ आर इन सीरीज, तो इसका हो जाएगा एडिशन R by 3 प्लस R यानी कि 4R by 3। अब ये पूरे पोर्शन का 4R by 3 इसके साथ यार पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस होगा PQ के बीच में 4R by 3 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 4R by 3 प्लस R, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको जरा भी कोई टेंशन लिए बिना सॉल्यूशन इस तरह देते, 4R स्क्वायर बाय 3 इधर LCM, सो 4 प्लस 3 7R by 3, तो ये 3 कैंसल, ये RR कैंसल, तो आंसर आएगा 4R by 7। मगर ये आंसर नहीं, अपने को तो R में दिलचस्पी है। सो R PQ कितना है, इट इज ऑलरेडी 4, सो आई कैन राइट 4 इज इक्वल टू 4R by 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 7 ओम, तो R होगा 7 ओम। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तब 4 ओम नेट रेजिस्टेंस मिलेगा। सो वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट मेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 जोरदार, तो अपन लोग अब 16 सॉल्व करते हैं। अभी भी इस पेपर में मैंने आइडियल क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन रखे हैं, टिपिकल लेवल पे अपन लोग बहुत कम गए, मगर ये पेपर सॉल्व करने से कंसेप्ट बनते हैं इसलिए। सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 नंबर को जरा देखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। So 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. There is a 2 volt battery AB and there is Y and X. Question interesting पूछा है, what is the potential difference across X and Y?
तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के बाद का पीडी फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है Vx और यहाँ पे पोटेंशियल Vy। हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पीडी पूछे, सबसे पहले उस पॉइंट पे KCL अप्लाई करना है। मगर KCL अप्लाई करना हो तो करंट चाहिए। तो यहाँ से करंट निकलेगा, देखो ये I, और एक करंट यहाँ के रुक जाएगा क्योंकि दो रास्ते प्यार के, एक रास्ता इस साइड जाता है, दूसरा रास्ता इस साइड जाता है। मगर ऐसे न्यूमेरिकल में पहले इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेक करो 2226, फिर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस करो 2226, मतलब करंट यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाफ और हाफ इधर। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल तो 2 वोल्ट है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 6 पैरेलल, हाफ, so 3, so this is your current 2/3 ampere। ready, 6 और 6 यानी कि हो जाएगा हाफ, 3 एम्पियर। सो 2/3, अब यहाँ से 2/3 एम्पियर करंट निकला देखो, तो इस साइड हाफ हो जाए तो 2/3 का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ 2/3 यानी 1/3 हो जाए, यानी कि इधर 1/3 एम्पियर और इधर भी 1/3 एम्पियर, पता चला। तो इस ब्रांच में 1/3 एम्पियर यहाँ तक और इस ब्रांच में 1/3 एम्पियर यहाँ तक, इधर 1/3 का संगम होके वापस 2/3 हो गया। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, x से लेकर y तक अब KCL अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई KCL फॉर पाथ, सॉरी x a y, देखो x से शुरू करो a और y तक। सो स्टार्ट, यहाँ पे पोटेंशियल Vx। अब अपन लोग जा रहे इस साइड कि करंट आ रहा है हमारे सामने, करंट सामने, मुसीबत सामने, एक स्लोगन लाइफ का, मुसीबत सामने आए तो बी पॉजिटिव। सो प्लस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट 1/3 रेजिस्टेंस 2। अब आ गया A to B ब्रांच, A to B ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना, 2 A to Y 4, तो 4 रेजिस्टेंस, करंट 1/3। मगर हम जा रहे हैं A to Y, करंट भी हमारे साथ साथ, सो माइनस करंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Vy। तो इसको सोल्व करें, Vx प्लस 2/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू Vy। सो Vx, इसका आंसर आएगा -2/3। चेक करो इतना पोर्शन का। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड y? इट इज 2/3 वोल्ट। मोस्ट टाइम पे तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस तरह सोल्व करने का, टू फाइंड द PD। यू कैन आल्सो अप्लाई जंक्शन रूल, बट दिस इज वी कैन से दैट इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत है और ये क्वेश्चन बुकसेट में भी आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव का बेस्ट ऐसे क्वेश्चन है वो पूछते ही है मोस्ट IMP। सो बी अलर्ट अबाउट 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, two identical cells of the same EMF and same internal resistance, these are the two identical cells, cell number 1 and cell number 2। EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ऐसे दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में, चेक करके डेटा। गिव द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो तो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से 2 ओम, पैरेलल में कनेक्ट करो तो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 2 ओम। सो करंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, current for parallel combination remain same, then what is the internal resistance of the cell? तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं सीरीज। देखो ये मोस्ट टाइम भी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट्स द करंट? करंट का फॉर्मूला देखो मैंने आपको बताया था, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में हो तो व्हाट इज द टोटल EMF? एक का EMF एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, सो इट बिकम्स n एप्सिलॉन। अपन जनरल इक्वेशन लिखेंगे ताकि कंसेप्ट बने। अब ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा n समेशन और प्लस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इसी तरह इसको मैं लिख देता हूँ सीरीज करंट। नाउ इफ ऑल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ n number of cells are connected in parallel, then what happens? So for parallel combination, just remember,
For parallel combination, EMF remain constant. So EMF एप्सिलॉन, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है तो R प्लस, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस N जितने रेजिस्टर पैरेलल में हो तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू N. So you know that N/R but bullet is so R/N. तो ये फॉर्मूला इस तरह होगा N एप्सिलॉन अपॉन NR प्लस. तो ये दोनों फॉर्मूले है, इसको अपन लोग कंपेयर करेंगे. क्यों? इस लोगों ने बोला करंट रिमेन सेम फॉर व्हाटएवर द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. सो हियर IS इज इक्वल टू IP. हियर नंबर ऑफ सेल्स गिवन, यू कैन सी दैट नंबर ऑफ सेल्स गिवन 2. तो स्टार्ट, सबसे पहले अपन लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखो, और इधर लिखते हैं N एप्सिलॉन NR प्लस R. तो सबसे पहले N एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो NR प्लस R प्लस NR. अब देखो N यानी नंबर ऑफ सेल्स तो 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, डोंट वरी. इंटरनल रेजिस्टेंस आपका टारगेट 2 प्लस 2R, तो ये होगा 4 प्लस R और ये होगा 2 प्लस 2R. R इस साइड, 2 इस साइड, सो R इज इक्वल टू 2 ओम. आ गया आंसर. मस्त क्वेश्चन, बुक सेट में भी पूछा हुआ, वेरी वेरी IMP, इसको खास ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 17, ये फॉर्मूले का कमाल. और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है जो नीट में JEE में भी पूछ चुके हैं और बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. सो ऐसे क्वेश्चन का थीम देखते हैं, बहुत ही IMP क्वेश्चन है. सो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज गिवन, जस्ट चेक इट. You can see this is the, we can say that nature of circuit. There is a 10 volt, 5 ohm, 2 ohm, 10 ohm, and there is again 20 volt. What is the question? In the given circuit, the value of current through 2 ohm resistor. This is your punching point. इसमें से कितना करंट पास होगा? अब जाहिर सी बात है, ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये नेगेटिव, इधर 0 वोल्ट होगा. देखो बिल्कुल बिंदास, इधर 20 होगा, इधर 0. तो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0 पोटेंशियल डिफरेंस 0, सो नो करंट एट ऑल. आंसर आएगा 0. मोस्ट IMP. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नंबर 18, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस 2 ohm resistor? इट इज 0 एम्पियर बिकॉज ऑफ दिस रीजन. नंबर 19, वेरी इंटरेस्टिंग एंड IMP फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं नीट में. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स मैं जो बोलता हूँ उसके वर्डिंग भी पकड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का काम यही होता है कि 100% में से नेगेटिविटी कहाँ पे. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कभी कभार बोल देता हूँ नीट में, मतलब भी कॉम्पिटिटिव में होगा, नीट में ना हो तो ट्रिपल JEE में भी होता ही है, मगर ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव में है ही. तो डोंट वरी, हमारा टारगेट ये नहीं पर्टिकुलर नीट में होना चाहिए, हमारा टारगेट कॉम्पिटिटिव में है. कॉम्पिटिटिव में है मतलब ये अपना वाला है. सो फ्रेंड्स, नाउ यू थिंक अबाउट नंबर 19. हियर वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन में भी दम है, और ये क्वेश्चन आपको इसलिए इधर मैंने पेपर में रखा है, डोंट फॉरगेट. दिस इज B and while this is, you can see that point A. 5 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 8 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 6 ohm, and there is B. Find the net resistance between A and B. ये आपका दो पॉइंट्स देखो, A और B. तो सबसे पहले आप बराबर देखो तो ये दोनों किस तरह कनेक्ट है? पैरेलल. तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफ यू थिंक अबाउट दिस portion, then 5 ohm. Similarly, these two resistors are connected in parallel, तो इसका 3 ohm हो जाएगा. अब दिमाग में बत्ती जली? अभी भी ना जली, देखो 5 5 8 3 3. यानी अगर आप इसको कह दो थोड़ी देर के लिए x और इसको कह दो y, तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ. a से 10, a से 10 सॉरी 5, देयर इज अ मिस्टेक, 5 ये रहा ना, इसका 5 और 5 से x, सो 5 से x, और x से 3, सो x से 3 और 3 से b, 3 से b आ गया. अब जिसे कह सकते हैं कि a से इस रास्ते जाते हैं तो a to 5 to y, सो a to 5 5 to y, y to 3 to b, y to 3 to b, और x और y के बीच में 8
अगर आप देखो 5/3, 5/3, what happened? You can see here already this bridge, Western bridge already in balance, so cancel. So this 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8, 8 parallel, so net distance 4 ohm. What's the question? You can see answer 4 ohm. So friends, this is your question number, I can say 18 number. Now you think about question, sorry, this is 19 number, and now last question we would like to solve. It is question number 20. अगर ये भी दम वाला क्वेश्चन है, so just concentration required. Okay, so now question number 20. In 20 number question we have to find the ratio of current through 8 ohm and 3 ohm. तो पहले डायग्राम देखते हैं. 4 ohm, 8 ohm, and then there is 3 ohm, 6 ohm, and then there is battery, then there is resistor. So check it. 4, 8, 3, 6, 5, and there is 4, and there is 12 volt. Question में दम है. You have to find current through 8 ohm upon current through 3 ohm. इसमें से जो करंट पास हो रहा है और इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसका रेशियो फाइंड करना है. सबसे पहले 5 का पंच, यानी 5 मतलब वेस्टर्न ब्रिज, 4/8 1/2, 3/6 1/2. That means the given bridge already in balance. So this point is the disappearing condition. That means अपन लोग इसको हटा दे. क्यों हटा दिया वो आपको पता चल गया. So अब इधर 6 होगा. अब देखो यहाँ से करंट निकलेगा, गूगल पेन के ये निकला, यहाँ आके करंट रुक जाएगा. सपोज दिस इज योर एक्स पॉइंट, दिस इज योर वाई. तो करंट यहाँ से रुक जाएगा क्योंकि दो रास्ते प्यार के. इसमें से I1 करंट पास होगा, इसमें से I2. टोटल करंट था I. तो 8 ओम में से I1 करंट पास हो रहा है और 3 ओम में से I2. तो अपन लोग को फाइंड करना है I1/I2. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सबसे पहले मैं ये अपर ब्रांच के दोनों रजिस्टर को किस तरीके से कंसीडर कर सकता हूँ, सीरीज. तो ये अपर ब्रांच को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ 12 ओम, 4 + 8. इसी तरह मिडिल ब्रांच या लोअर ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस होगा 9 ओम, 6 + 3. इसके साथ है बैटरी 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस 4 ओम. रेडी. अब अपन लोग तो जानते हैं यहाँ से टोटल करंट आई, ये आई दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इसको अपन लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. देखो मैं इधर ही ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ ना करना पड़े. यानी ड्रॉ किया था मगर कुछ लोगों को क्या पर्टिकुलर पैटर्न ना मिला तब तक मजा नहीं आता, इसलिए मैंने पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट किया. इधर 12 और इधर 9 हो गए. तो अपना 8 ओम इधर है 12 के अंदर और अपना 3 ओम ऊपर 9 के, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है. सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, यानी जितना 6 में से पास होगा उतना 3 में से. इसी तरह 4 और 8 भी सीरीज में, जितना 1 में से उतना 4 में से. यानी कि अगर इस ब्रांच का करंट मिल जाए और इस ब्रांच का करंट मिल जाए तो न्यूमेरिकल पूरा. तो अपन लोग तो इसमें माहिर है. I1 I2 टोटल करंट I, इसको क्या देते हैं R1 R2. तो इसका शॉर्टकट मैंने डिस्कस किया हुआ है. करंट पासिंग थ्रू R1 रजिस्टर. याद करो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 पैरेलल रजिस्टर्स. तो I1 का शॉर्टकट है IR2 अपॉन R1 + R2 और I2 होगा IR1 अपॉन R1 + R2. ठीक. इन शॉर्ट अपने को I मिल जाए यानी सब कुछ खत्म. तो I फाइंड करना मतलब टोटल करंट. सो टोटल करंट का फॉर्मूला होगा टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल 12. अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. सो 12 और 9 किस तरह कनेक्ट है पैरेलल. इधर देखते जाना 12 × 9 अपॉन 12 + 9. सो 12 9 108 और 12 + 9 21. तो आंसर आएगा 108 अपॉन 21. ओके. टोटल प्लस आएगा 4 क्योंकि ये भी है ना. तो 108 + 21 4 × 84 अपॉन 21. इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 192 अपॉन 21 ओम. तो चलो 192 अपॉन 21 आंसर है. इसको ऐसे रखेंगे डोंट वरी. सो टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस है 192 अपॉन 21. ये 21 गुलाटी मार के ऊपर, तो आंसर आएगा 12 × 21 अपॉन 192. तो 12 × समथिंग करो कितना करेंगे 12 × 1 यानी 12
12 इंटू 16 करो तो 192 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 21/16 एम्पियर। चलो रेडी, यानी कि टोटल करंट निकला यहाँ से 21/16 एम्पियर। अब ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो स्टार्ट, सबसे पहले अपन लोग I1 फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा इसको हटा के I1 पहले फाइंड कर लेता हूँ। So I1 is equal to I है 21/16, we have already found। R2 मतलब 9 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 12 प्लस 9। तो देखो इसको सोल्व करने का है। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 16 को डिनोमिनेटर में रख दें, देखना। And what is the 12 plus 9? It is also 21. 21 cancel. So what is your I1? It is 9/16 ampere. Ready? अब इसी तरह I2 फाइंड करते हैं। So I2 is equal to IR1 upon R1 plus R2. I है 21/16. Already we have found. R1 है 12 और R1 plus R2 यानी 12 plus 9 directly I can get 21 cancel. सो I2 होगा 12/16 एम्पियर। मगर न्यूमेरिकल में इसका रेशियो फाइंड करने का पूछा है। तो इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू, सो विल राइट हियर I1/I2 is equal to, that means current passing through 8 ohm upon current passing through 3 ohm. So 9/16 upon 12/16 यानी 9/12 यानी 3/4 यानी 3:4 आंसर आता है। चेक दिस, वी कैन से द लास्ट क्वेश्चन में देखो 3/4 D। सो लास्ट आंसर D सही है, 3/4। सो मोस्ट IMP। तो ये भी क्वेश्चन में दम है कैलसी के मुताबिक। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस मोस्ट IMP 2020 सीरीज, यानी कि 20 क्वेश्चन सोल्व किए। ये सभी क्वेश्चंस को वापस घर पे देखो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको अच्छी तरह देखो। इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक JEE नीट का पेपर लिया था, एक असाइनमेंट दिया था। और अब नेक्स्ट वीक में अपना इसका मोस्ट IMP 45 क्वेश्चंस का एक पेपर वो रखते हैं, ताकि 45 क्वेश्चंस यानी 180 मार्क्स यानी पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बाकी रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो हो जाए मतलब चैप्टर कंप्लीट। अगर जस्ट एनालाइज दिस 2020 एंड यूज योर टाइम, वी कैन से दैट प्रॉपर्ली। थैंक्स।